My dear friends, it's a joy to see you today. मेरे दोस्तों, आज आपसे मिलना तो आनंद की बात है। Let's meditate on the word of God from Deuteronomy 33:27. आइए व्यवस्था विवरण 33-27 में दिए गए परमेश्वर के वचन पर मनन करें। The eternal God is your refuge, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है and underneath are the everlasting arms. और नीचे सनातन भुजाएं हैं। What a comfort it is for us. यह तसल्ली देने वाला वचन है। His hands are so huge, उसकी भुजाएं कितनी विशाल हैं। and He will hold you in His arms. वह आपको थाम लेगा। You will feel the peace of God within this refuge that God provides. परमेश्वर के शरण स्थान में आप उसकी शांति का अनुभव करेंगे। In the midst of great danger, we have felt so much peace that we will not be swallowed. भयानक खतरे के बीच भी हमें इतनी शांति का अनुभव हुआ कि हम निगले नहीं जाएंगे। We will not be finished. हमारा अंत नहीं होगा। We will not be destroyed. हम नष्ट नहीं होंगे। That peace will be felt by you in your heart as you trust in Him. Pray to Him and say, Lord, you are my refuge. जब आप उस पर भरोसा करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु आप मेरी शरण हैं, तो आपको अपने हृदय में शांति का अनुभव होगा। Let's look up to Him as our refuge, my friends. आइए हम सब उसे अपना गृहधाम माने। And this word says, underneath are the everlasting arms. और यह वचन कहता कि नीचे सनातन भुजाएं हैं। He will never let us go. वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। He will never forsake us. ना हमें कभी त्यागेगा। You can trust in these arms. आप उसकी भुजाओं पर भरोसा कर सकते हैं। Even though we cannot trust any man in this world. यद्यपि इस संसार में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। They might have betrayed you. शायद लोगों ने आपको धोखा दिया The हो। closest ones even. यहाँ तक करीबी लोगों ने भी। But His arms are everlasting. लेकिन उसकी भुजाएं सनातन की हैं। We went to a meeting once एक बार हम एक सभा में गए थे and we had a great meeting. और वह सभा बहुत अच्छी रही। After that, we got into the car and as we were driving back to our place, और उस सभा के बाद अपने कार में बैठकर हम जब वापस आ रहे थे, we were amazed to see that the roads were full of water. हम चकित हुए यह देखकर कि पूरे सड़कों में पानी भरा है। Were rains there. शायद वहाँ बारिश हुई थी। But in that meeting place, we heard no rain. लेकिन सभा स्थल पर वहाँ बारिश नहीं हुई थी। It was an open place. वह स्थान तो पूरा खुला हुआ था। There was no shelter for the people. वहाँ लोगों के लिए कोई छत नहीं बनाई गई थी। And we had conducted the meeting without any rain. और बिना किसी बारिश के हमने उस सभा को पूरा किया। But outside that ground premises, लेकिन उस मैदान के बाहर we saw that there was rain that morning. हमने पाया कि उस सुबह वहाँ बारिश हुई थी। We were amazed and asked the people there in the town. हम चकित हुए और शहर के अन्य लोगों से हमने पूछा। And they asked, didn't you get rain in your ground? लोगों ने पूछा क्या सभा स्थल पर बारिश नहीं हुई? They said that it had rained all around except in that ground. लोगों ने फिर कहा कि उस सभा स्थल को छोड़कर बाकी सारे जगहों पर बारिश हुई। It is marvelous. यह तो अद्भुत था। We saw the hand of God हमने परमेश्वर की भुजाओं को देखा, protecting the people as they came to Him for His word. लोगों को सुरक्षा देते हुए जो उसके वचन को सुनने के लिए उसके पास आए थे। The eternal God is our refuge. अनादि परमेश्वर हमारी शरण है। It was a wonderful sign that God loved us, परमेश्वर के प्रेम का यह अद्भुत संकेत था that He cares for His people. कि वह अपने लोगों की परवाह करता है। He will do it for you in a great measure also, my friends. मेरे दोस्तों, वह आपके लिए भी ऐसा करेगा। Don't be worried of this danger. इस खतरे से मत घबराइए। Let's ask Him right now. आइए उससे प्रार्थना करें। Let your mighty arms come upon your people, Lord. प्रभु अपनी सामर्थी भुजाओं द्वारा अपने लोगों को घेर लीजिए। Shelter them, Lord. उन्हें शरण दे प्रभु। Shelter them from the fear first, भय से दूर उन्हें छिपा लीजिए। from the sorrow first, दुखों को दूर कर दीजिए। from the anxieties first. चिंताओं को दूर कर दीजिए। Let them not lose their trust in you. उन्हें आप पर से अपना भरोसा ना खोने दें। Let them not lose their faith, Lord. वे अपने विश्वास को ना खोएं। Father, you reward our faith with great peace. पिता, आप हमारे विश्वास को शांति का प्रतिफल दें। Let your peace fill them as you cover them with your arms. आपके बाहों में आपकी शांति उन्हें भर दे। Thank you, Lord, for your filling us as we look up to you. धन्यवाद प्रभु, जैसे हम आपकी ओर देखते हैं आप हमें भर रहे हैं। Now, Lord, let every problem drift away from them. अब प्रभु हर एक समस्या उनसे दूर हो जाए।
with one word solve their difficulties. एक शब्द मात्र से उनकी समस्याओं का हल निकल आए। Let the job be restored to them, Lord. उनकी नौकरी उन्हें वापस मिल जाए। Let the marriage situation change and be restored. वैवाहिक स्थिति सुधरे और इनका विवाह फिर से संवर जाए। Let the divorce papers be dropped right now. तलाक के कागजात इसी समय रद्द किए जाएं। Let both the hearts join back together, दोनों के हृदय एक साथ फिर से जुड़ जाएं, full of love. प्यार से भरे हुए। Let the medical reports change, Lord. मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएं। Thank you for you giving victory for your children in all their things. धन्यवाद, हर बातों में आप अपने बच्चों को जय दे रहे हैं। Not one thing will be taken away from them. उनसे कुछ भी छीना ना जाएगा। Your everlasting arms are with us and for us. आपकी सनातन भुजाएं हमारे लिए और हमारे साथ। In Jesus' name we praise you. यीशु के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Continue to like these videos and share it with your friends. इन वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें। Click on the subscribe button. सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। If you want to grow more in the spirit, अगर आप अपनी आत्मा में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, you can visit our prayer towers. आप हमारे निकटतम प्रार्थना भवन को संपर्क कर सकते हैं You can attend the meetings. और वहां पर आयोजित सभाओं में भाग ले सकते हैं। You can see the details on the screen. हाँ, इसके बारे में जो पूरा विवरण है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। In a week, we have so many meetings. और प्रति सप्ताह विभिन्न तरह के सभाएं आयोजित करते हैं। The Tuesday morning meetings are so special. और मंगलवार की जो सुबह की जो सभा है बहुत ही आशीषमय है। You can come with fasting and pray and receive the anointing. आप उपवास के साथ सभा में भाग लेकर प्रभु के आशीष और अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। Through you, I know the Lord will bless your entire household. और मैं जानती हूँ आपके द्वारा प्रभु आपके पूरे घराने को आशीषित करेंगे। May you be built into a beautiful temple of God. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप प्रत्येक जनों को प्रभु के एक सुंदर भवन मंदिर के रूप में बनाएं। God bless you. प्रभु आप प्रत्येक जनों को आशीषित करें। Precious Isha Ishika Lakra, happy birthday! प्रिय ईशा इशिका लाकरा, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you, Isha. According to 2 Chronicles 1:12, may God give you wisdom and knowledge, wealth, possessions and honor. ईशा, परमेश्वर आपको दूसरा इतिहास 1:12 के अनुसार अत्यधिक आशीषित करे। परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति और सम्मान प्रदान करें। Lord bless Isha with wisdom and great accomplishments and a golden future and spiritual grace. हे प्रभु, ईशा को ज्ञान, महान उपलब्धियां, उज्जवल भविष्य और आत्मिक अनुग्रह से आशीषित करें। Ayush, a blessing in the studies and excellence and spiritual grace. आयुष को पढ़ाई में सफलता की आशीष मिले, आत्मिक अनुग्रह और उत्कृष्टता की प्राप्ति हो। And Mrs. Gloria Ekha and Mr. Paradise Lakra have divine spiritual blessing and good health, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. श्रीमती ग्लोरिया एक्का और श्री पैराडाइज लकरा को अलौकिक रीति से आत्मिक आशीर्वाद और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। हम यीशु के नाम से यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। God bless you. Precious Dr. C. Ramakrishna, along with you, I wish your beloved wife, Mrs. Yam Sridevi, a happy birthday. आदरणीय डॉक्टर सी रामकृष्ण, आपके साथ साथ मैं आपकी प्रिय पत्नी श्रीमती एम श्रीदेवी को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you. According to Deuteronomy 7:14, you'll be blessed more than any other people. परमेश्वर आपको व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार आशीष दे। आप अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अधिक आशीष पाएंगे। Lord bless Sister Sridevi and Dr. Ramakrishna with divine blessings in the family. Give them an own house quickly, Lord, and promote your son to greater heights in the name of Jesus beyond understanding. Let the blessing come. हे प्रभु, बहन श्रीदेवी और डॉक्टर रामकृष्ण को परिवार में ईश्वरीय आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, उन्हें शीघ्र ही अपना स्वयं का घर भी दीजिए और यीशु के नाम से अपने बेटे को और भी ऊंचाइयों में पहुंचाइए। समझ से परे उन्हें आशीर्वादित करें। Nicholas, a promotion in the job and a wonderful life partner. Immediately let him be married, divinely blessed by God, and have great joy in his family life. Amen.
निखिलेश को नौकरी में पदोन्नति मिले और एक बेहतरीन जीवन साथी की प्राप्ति हो, उसकी शादी तुरंत हो जाए, वो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अद्भुत रीति से आशीष पाए और अपने पारिवारिक जीवन में अपार आनंद का अनुभव करता रहे। आमीन। God bless you.